Welcome to English Grammar class, dear students. Today we will practice how to write the personal letters using some examples. So before I begin, I would like to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. A promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. A promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So let's begin. So first of all, open your books at page number 239. हम फिर से एक बार फॉर्मेट को रिवाइज करेंगे. So in the beginning you will write the address of the letter writer. After that you will write the date. Then you will write the salutation that can start as dear. Then you will write the contents in the form of 3 body paragraphs. In the end you will write the subscription as yours sincerely, and after that you will write your name and signature. So this is the format that we will follow. So let's see these solved examples. First is, your uncle who is residing in a hill station writes to you asking you if you would be interested in visiting him for a well-deserved holiday after your ICSE examinations. तो आपकी ICSE एग्ज़ामिनेशंस ख़त्म होने के बाद आपके अंकल ने आपको हॉलीडे के लिए बुलाया है एक हिल स्टेशन में. राइट टू हिम थैंकिंग हिम फॉर हिज ऑफर एंड स्टेटिंग योर डिसीजन टू विजिट हिम और नॉट, गिविंग रीजंस फॉर योर डिसीजन. तो अब आपने उसको पहले थैंक यू बोलना है और उसके बाद अपना डिसीज़न बताना है कि आप उसको विज़िट करेंगे या नहीं विज़िट करेंगे, और रीजंस भी देने हैं अपनी डिसीज़न के लिए. सो फर्स्ट यू विल मेंशन द एड्रेस which is 176C Cathys Villa, इंद्रलोक कॉलोनी, लखनऊ 226003. तो ये हो गया एड्रेस. आफ्टर दैट यू विल मेंशन द डेट 10th of March 2021. इसके बाद आप लिखोगे salutation, dear uncle Douglas, received your letter today and was really excited to read the contents. Thanks a lot for your invitation to visit Missouri. It has been my long cherished dream to visit the Queen of Hills, and I would not like to miss out on this opportunity. तो आपने स्टार्टिंग की थैंक्स से कि मुझे आपका लेटर मिला और मैं मसूरी में विज़िट करने के लिए आपने मुझे बुलाया, उसके लिए आपको थैंक यू बोलता हूँ. और मैं क्वीन ऑफ हिल्स, जो मसूरी का ही दूसरा नाम है, वहाँ पे विज़िट करना चाहता था पहले से ही, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूँगा. नाउ सेकंड बॉडी पैराग्राफ में आपने क्या लिखा? आई हैव ऑलवेज हर्ड एंड रेड अबाउट द नेचुरल सीनिक ब्यूटी ऑफ मसूरी and the vast variety of adventures and thrills it has to offer, especially the mall and the various trekking expeditions organized by the experienced local trekking clubs. तो आपने मसूरी के बारे में जो जो बात सुनी है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, कि आपने उसकी नेचुरल सीनिक ब्यूटी के बारे में सुना कि मसूरी में नेचर बहुत अच्छा है और वहाँ पे काफ़ी एडवेंचर्स और थ्रिल्स भी हैं, और वहाँ पे ट्रैकिंग क्लब जो है वो ट्रैकिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं. तो अबव ऑल इट्स बीन ईयर्स सिंस आई हैव मेट यू एंड आंटी. तो इसके अलावा भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया कि मैं आपसे और आंटी से नहीं मिला. At present, my ICSE examinations are in full swing and will be concluding on the 23rd of March, after which I will be free for almost a month. कि अभी प्रेजेंट में मेरी ICSE एग्ज़ामिनेशंस चल रही हैं और 23rd तक चलेंगी और उसके बाद मैं फ्री होऊंगा 1 महीने के लिए. इट इज़ ड्यूरिंग दिस टाइम दैट आई प्लान टू विज़िट यू ऑल. और उस टाइम में जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं आपको विज़िट करूंगा. आई विल कंफर्म माई डेट ऑफ टिकट रिजर्वेशंस लेटर. और उसके बाद ही मैं अपनी टिकट रिजर्वेशन भी कंफर्म करूंगा. टू विज़िट यू इन मसूरी विल बी एन आइडियल प्लेस टू अनवाइंड आफ्टर सच अ एक्सॉटिक एग्जामिनेशन. तो इतनी थका देने वाली एग्ज़ामिनेशंस के बाद मसूरी में जाना एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि मसूरी एक आइडियल प्लेस है, यहाँ पे जाके मैं अपनी थकान को
मिटा सकता हूँ। डू गिव माई रिगार्ड्स टू आंटी एंड लव टू माई कज़िन केविन एंड बेथ। इसके बाद आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस यहाँ पे ऐड किया। कंक्लूडिंग सेंटेंस है डू गिव माई रिगार्ड्स टू आंटी एंड लव टू माई कज़िन केविन एंड बेथ। सो ये है कंक्लूडिंग सेंटेंस। योर लविंग नेफ्यू क्रेग। उसके बाद आपने नेम मेंशन कर दिया। सो नाउ लेट्स रीड द सेकेंड एग्जाम्पल। Now second letter is about letter to a friend telling him how you have been spending your time since you finish your examination। कि आपकी एग्ज़ामिनेशंस फिनिश हो गई हैं और उस एग्ज़ामिनेशन के फिनिश होने के बाद आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, तो फिर से हम स्टार्टिंग करेंगे एड्रेस से, उसके बाद डेट, उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद 3 बॉडी पैराग्राफ्स जिसमें कंटेंट होगा और उसके बाद सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर्स। सो फर्स्ट 65 कुमार कॉलोनी, करीम रोड, सीतापुर 274001, दिस इज़ द एड्रेस। उसके बाद 4th of July 2021, दिस इज़ डेट। Then you will start with the salutation. Dear Aminesh. Now, opening sentence. I was very glad to learn that you have done extremely well in your examinations. You deserve all the praise and congratulations as you have really worked hard, which is quite evident from your results. तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि तुमने एग्ज़ामिनेशंस में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और तुम ये सारी प्रेज़ और कॉन्ग्रेचुलेशन डिज़र्व भी करते हो क्योंकि तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है और वो तुम्हारे रिज़ल्ट से ही पता चलता है। दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम योर रिज़ल्ट, मतलब रिज़ल्ट से पता चलता है। ठीक है, रिज़ल्ट इस बात का सबूत है कि तुमने हार्ड वर्क किया है। यू हैव आस्क्ड मी टू टेल यू हाउ आई हैव बीन स्पेंडिंग माई टाइम सिंस आई टुक माई एग्ज़ामिनेशन। तो तुमने मुझसे पूछा था कि मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहा हूँ जब से मैंने एग्ज़ामिनेशन दी है। As a matter of fact, I have been waiting for my results so eagerly that I have not done half the things I had planned to do during this long holiday. तो मैंने रिज़ल्ट का इतना बेसब्री से वेट किया है कि जो भी मैंने प्लान किया था कि मैं हॉलीडेज़ में करूँगा उसका आधा भी मैंने अभी नहीं किया। However, I have been doing a lot of reading. बट मैं इस समय के दौरान बहुत सारी रीडिंग कर रहा था, मतलब बुक्स रीड की। देयर वर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स आई वॉज इंटरेस्टेड इन व्हेन आई वॉज एट स्कूल एंड कुड नेवर फाइंड टाइम टू रीड अबाउट बिकॉज दीज वर आउट ऑफ द सिलेबस। सो काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें थी जिनमें मैं इंटरेस्टेड था जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, पर मैं उन चीज़ों को रीड नहीं कर पाया, उन बुक्स को रीड नहीं कर पाया क्योंकि वो बुक्स सिलेबस का पार्ट नहीं थी। बट नाउ आई हैव रेड 2 बुक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड सेवरल नॉवेल्स मोस्टली बाय R.K. नारायण, कैन फॉलेट एंड शोभा डी। बट अब मैंने उन बुक्स को रीड करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि मैंने 2 बुक्स एस्ट्रोनॉमी की पढ़ी है और बहुत सारे नॉवेल्स भी पढ़े हैं, विशेष करके R.K. नारायण के, कैन फॉलेट के और शोभा डी के। It is really an exotic experience to read a book for pleasure and not for an examination. तो ये पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि आप एग्ज़ामिनेशन के लिए नहीं पढ़ रहे बल्कि आप प्लेजर के लिए पढ़ रहे हो। आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको बुक रीडिंग पसंद है। I have not paid any attention to the law books. और मैंने लॉज की बुक अभी तक नहीं पढ़ी। I will have enough time to devote to these books when I start attending the university. क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तो मुझे काफ़ी टाइम मिलेगा कि मैं इन बुक्स को भी पढ़ सकूं। तो अभी मैं आउट ऑफ सिलेबस बुक्स पढ़ रहा हूँ। I have also been visiting the club quite often. There is so much to do there and I have even won the annual table tennis championship. It was great fun but I really had to sweat it out. The competitors were good and we played in the spirit of the game. तो उसके अलावा बुक रीडिंग के अलावा मैं क्लब्स में भी जा रहा हूँ और क्लब्स में भी विज़िट कर रहा हूँ और मैंने टेनिस चैम्पियनशिप में एनुअल प्राइज़ भी जीता है ना। इट वॉज़ ग्रेट फन और उसमें मुझे अच्छा भी लगा, पर आई हैड टू स्वेट इट आउट। स्वेट इट आउट का मतलब है कि मुझे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स थे वो इतने अच्छे थे और बहुत ही अच्छे से प्ले करते थे।
तो मेहनत करनी पड़ी जीतने के लिए। आई विल सर्टेनली लेट यू नो व्हेन माई रिजल्ट्स आर आउट, और मैं आपको बताऊंगा जब मेरे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ईच डे ब्रिंग्स मी क्लोजर टू द declaration of the result and my nervousness increases, but I am confident that I will do well. अब हर एक दिन जब बीत रहा है तो मतलब रिजल्ट्स के नज़दीक हम जा रहे हैं, बट मेरी नर्वसनेस बढ़ती जा रही है, पर फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा ही करूँगा। डू गिव माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम। अब इसके बाद ये आ गई क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टेटमेंट में आपने क्या लिखा? डू गिव माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम। Then comes the subscription, yours sincerely, and then the signature and name, Amit. So that's all. तो आपने अब 2 एग्जाम्पल्स रीड कर लिए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप लेटर को फॉर्म कर सकते हो, एंड वी विल स्टडी few more examples later. All the very best.